Hello everyone, welcome to my YouTube channel AB Classes. Our today's topic is the polarization of light. Before discussing the polarization of light, as we know, wave. What is wave? Wave is a vibratory disturbance that take place in a medium. Now there are two type of wave. One is transverse wave and another is longitudinal wave. In longitudinal wave, the vibration of particle of medium are parallel to the direction of propagation of wave. That is, if this is the direction of propagation of wave, then the particle oscillate as in this direction. Okay. But in transverse wave, if this is the direction of propagation of wave, then the vibration of particle of medium in transverse wave are perpendicular to the direction of propagation of wave. That is, the particle oscillate in this direction. Okay. So this is longitudinal wave, this is transverse wave. So only transverse wave shows the phenomena of the polarization of light. Now explore the transverse wave, how the vibration take place in this transverse wave. See, this is the direction of vibration. Sorry, this is the direction of propagation of wave. Now the transverse wave are like this. This is the one direction of vibration of another vibration present in this direction, another vibration present in this direction. So there are various directions in which the vibration of particle take place. Either the vibration take place parallel to this plane, perpendicular to this plane, at some angle to this plane. So all these vibrations present in this transverse wave. This is called unpolarized or ordinary wave. एक ऐसा वेव जिसमें वाइब्रेशन ऑफ मीडियम जो है हर एक डायरेक्शन में हो, ऑल अराउंड 360 डिग्री, कुछ डायरेक्शन से ऐसे भी हो, कुछ अंदर की तरफ हो, कुछ किसी एंगल पे हो. तो देखो इसमें ऐसे भी वेव चल रहा है, अंदर की तरफ वेव भी चल रहा है, किसी एंगल पे भी आ रहा है. So this is called ordinary light or ordinary wave. Now there are some method from which we can obtain a light wave in which the vibration of particle of medium present only in one direction. ठीक है, कुछ ऐसे हमारे पास apparatus होते हैं, कुछ ऐसे हमारे पास materials होते हैं जिसके थ्रू जो है जो हम वाइब्रेशन हमें मिलेगा. जैसे यहाँ पे देखो वाइब्रेशन हर एक डायरेक्शन में है, यहाँ पे वो अगर हम मटेरियल प्लेस करेंगे तो जो यहाँ पे लाइट मिलेगी हमें वो सिर्फ एक डायरेक्शन में ही, उसमें जो वाइब्रेशन होगा पार्टिकल का वो सिर्फ एक डायरेक्शन में ही होगा. दैट इज पैरेलल टू दिस प्लेन. ये नहीं कह रहे कि बस हमें यही मिलेगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा. वो एक डायरेक्शन पैरेलल भी हो सकता है, वो एक डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन भी हो सकता है. ठीक है. सो the phenomena of restricting the oscillation of vibration to just in one direction by using some material, some apparatus is called polarization of light. This is another phenomena which is based on the wave nature of light. So let's do a experimental demonstration of this polarization of light. See, generally I am using two representation. One is like this and one is dot. So this arrow-headed representation represent the vibration of particle parallel to this plane, and this dot represent the vibration of particle perpendicular to this plane. ये दोनों वाइब्रेशन एक नॉर्मल ट्रांसवर्स में प्रेजेंट होंगे. ठीक है. देखो सिंपल सी बात है, इसमें कुछ कंफ्यूजन वाली बात नहीं है. ट्रांसवर्स वेव का क्या मतलब है कि वाइब्रेशन ऐसे भी हो रहा है, कुछ वाइब्रेशन ऐसे भी तो होंगे, बाहर से अंदर की तरफ जाते होंगे ऐसे, समझ आई, कुछ किसी एंगल पे होंगे ऐसे. ठीक है. तो हमें क्या करना है, सिर्फ एक डायरेक्शन के वाइब्रेशन को लाना है, उसी को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं. चलो अब एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन थोड़ा देखते हैं. सपोज करो एक हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट या ऑर्डिनरी वेव है जिसमें दोनों वाइब्रेशन प्रेजेंट है. ठीक है. दिस इज ऑर्डिनरी वेव, ऑर्डिनरी या अनपोलराइज्ड कह सकते हैं, अनपोलराइज्ड वेव. अब हमने क्या किया, अभी मैंने बताया कि पोलराइजेशन के लिए हम कुछ मटेरियल्स यूज करते हैं जिसको पोलराइजर कहते हैं. जैसे टुरमलीन क्रिस्टल हो गया,
टूरमलीन क्रिस्टल, टूरमलीन crystal. Second one is what? Nicole prism, Polaroid. So these are the materials which we are using for obtaining the polarized light. Now this is unpolarized light, in which there are two mode of vibrations are present. One which is parallel to this plane and one which is perpendicular to this plane. Now by somehow we have to obtain the vibration of wave only in one direction. Either we will get this arrow or this dot. Okay. Now let's suppose we put a Nicole prism here. This is the axis. Now as it passes through this polarizer, this is called a polarizer. Now the function of polarizer is what? To polarize the rays of light, means to restrict the rays, remaining rays, and just allowing only one vibration to it. तो ये पोलराइजर कुछ इस डायरेक्शन में है, तो ये क्या करेगा, ये इस डॉट को रेस्ट्रिक्ट कर देगा, जो वाइब्रेशन ऐसे परपेंडिकुलर हो रहा है इस प्लेन के, उसको रेस्ट्रिक्ट कर देगा और सिर्फ किसको अलाउ करेगा, इस एरो हेडेड वाइब्रेशन को. तो यहाँ से हमें क्या मिला, आगे चलते चलो, यहाँ से हमें मिल गया एरो, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड वेव. अब देखो इसमें डॉट और एरो दोनों थे, दोनों वाइब्रेशन थे. यहाँ पे क्या हो गया, सिर्फ एक वाइब्रेशन हमें देखने को मिलता है, दैट इज पैरेलल टू दिस प्लेन. बट हमें पता कैसे लगेगा, यहाँ से ये लाइट रेज आई तो हमें पता कैसे लगेगा कि ये लाइट पोलराइज है ना. तो इसके लिए एक और हम क्या यूज करते हैं, एक और पोलराइजर यूज करते हैं, लाइक दिस. एक और पोलराइजर यूज करते हैं. अगर ये पोलराइजर इस पोलराइजर के पैरेलल में है, मीन्स दोनों का एक्सिस ऑफ ओरिएंटेशन पैरेलल हो, तो क्या होगा, ये पोलराइज लाइट है, ये ऐसे ही पास हो जाएगा इस, ठीक है. ये जो पोलराइज लाइट है ये ऐसे ही पास हो जाएगा इस पोलराइजर से. लेकिन अगर हम इस पोलराइजर को इसके रेस्पेक्ट में 90 डिग्री रोटेट कर देंगे, मतलब एक पोलराइजर ऐसे है और एक पोलराइजर ऐसे है और एक ये वाला जो ऐसे है, इसको ऐसे 90 डिग्री या ऐसे रोटेट कर देंगे, तो होगा क्या कि ये जो लाइट रेज है अब इससे पास नहीं होंगी. मीन्स ये फर्स्ट केस हुआ और यहीं पे यहाँ पे हम क्या किए, ये हम जो पोलराइजर यूज कर रहे हैं इसको हम क्या किए, रोटेट कर दिए. रोटेट का मतलब क्या है कि ये एक्सिस अब ऐसे हो गया, ऐसे रोटेट कर दिया 90 डिग्री, तो जो लाइट रेज आएगी वो इसके आगे पास ही नहीं होगी. मीन्स हमें नो वेव ऑब्टेन, ठीक है. एक केस में क्या हुआ कि जब ये इसके पैरेलल था तो हमें लाइट रेज जो है ऑब्टेन हो गई, पोलराइज लाइट. लेकिन अगर इसको हम 90 डिग्री रोटेट कर दिए इसके रिस्पेक्ट में तो हमें लाइट नहीं मिली. इसलिए इस पोलराइजर को क्या कहा जाता है, एनालाइजर. ये क्या करता है, एनालाइज करता है कि जो गिवन लाइट रेज है इसकी तरफ आ रही है वो पोलराइज है कि नहीं है, ठीक है. तो पोलराइजर का यही काम होता है कि ये क्या करेगा, सारे डायरेक्शन के वाइब्रेशन को रेस्ट्रिक्ट करेगा, सिर्फ एक डायरेक्शन के वाइब्रेशन को अलाउ करेगा पास होने के लिए. एक सिंपल सा मैं एग्जांपल समझा देता हूँ. सपोज करो कि हमारे पास लाइट है, ठीक है, ये ऐसे, और यहाँ पे मैंने एक स्लिट रख दिया कुछ इस तरीके से, और वर्टिकली ऐसे करके एक पतली सी स्लिट, ठीक है, और एक वाइब्रेशन ऐसे है, मतलब एक ऐसे है और एक ऐसे है. तो एक बात बताओ, ये लाइट जब इससे पास होगी तो जो पैरेलल है, जो ऐसे जा रही है वो तो इससे पास हो जाएगी ना, मतलब ये वाली लाइट रेस तो इससे पास हो जाएगी. बट जो ये वाली लाइट रेस है, ये वाली, ये तो पास नहीं हो पाएगी ना. तो यही तो पोलराइजर करता है. पोलराइजर कुछ इस तरीके से अलाइंड होता है कि वो सिर्फ एक वाइब्रेशन को अलाउ करता है, ठीक है. जैसे इसके तरीके से, और मान लो आगे चल के मैंने एक स्लिट रख दिया जो ऐसे हो, हॉरिजेंटल हो, तो ये जो लाइट रेस है इसके पास नहीं, पार नहीं हो पाएंगी ना. इसके पास, इससे पास होने के लिए हमें जो ये वाला स्लिट है इसको भी ऐसे ही रखना पड़ेगा, तभी तो ये इससे ऐसे पास हो जाएगा. लेकिन अगर हम ये हॉरिजेंटल रख दे, दैट इज 90 डिग्री,
तो ये लाइट रे इससे पास नहीं हो पाएगी, यही कंडीशन तो ये वाली है, और ये वाली जो कंडीशन है वो ये है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोलराइजर एंड एनालाइजर, कैसे पोलराइजेशन होता है, कैसे लाइट रेस पास होती है। पोलराइजेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि जो वाइब्रेशन हमें मिले लाइट में, पोलराइज लाइट में जो वाइब्रेशन होता है सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है। ठीक है, एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। सी, हमारे पास सपोज करो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड हम देखते हैं कि ऐसे परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। तो ये जो हम बनाते हैं ना, ये डायग्राम देखे होंगे आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ये एक बेसिकली एक पोलराइज लाइट का हम कंडीशन बनाते हैं, जिसमें सिर्फ एक वाइब्रेशन को दिखाते हैं। जरूरी थोड़ी है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है सिर्फ एक ही कंपोनेंट हो इसके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा 360 डिग्री रहेगा। बात है समझ में? मतलब क्या हुआ कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, 360 डायरेक्शन में ये वाइब्रेशन इसका होता रहेगा। तो हमें करना क्या है कि सिर्फ एक डायरेक्शन में वाइब्रेशन चाहिए होता है, तो हम पोलराइजर का यूज करते हैं। अब एक टर्म आता है, एक लॉ आता है विच इज कॉल्ड मैलस लॉ। एक लॉ आता है विच इज कॉल्ड मैलस लॉ, मैलस लॉ। नाउ व्हाट इज मैलस लॉ? सपोज दिस इज दी, वही मैं फिगर बना दे रहा हूँ फिर से। ठीक है, यहाँ पे एक पोलराइजर है, इसे लाइट रेस पास हुई तो हमें कौन सा लाइट रेस मिला? जो पैरेलल है इस प्लेन के। फिर अब हमने एक एनालाइजर यूज कर लिया तो हमें यहाँ पे लाइट रेस मिलेंगे। ठीक है, ये एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन, ये हो गया हमारा पोलराइजर, और ये हो गया हमारा एनालाइजर। ठीक है, ये हो गया अनपोलराइज्ड, ये हो गया हमारा पोलराइज्ड। नाउ as we know, light has intensity, this wave has some intensity, so this law tells us about the intensity which is obtained at the analyzer side. The light which is passes through, the polarized light which is passes through this analyzer, it gives relation of the intensity of that light, how the intensity of that light which is obtained from this analyzer varies with some angle theta. Now what is this theta? Theta is the angle between the orientation of this analyzer and this polarizer. Okay, जैसे अभी हमने देखा कि ये एनालाइजर अगर इसके पैरेलल है तो जो यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि सारी लाइट जो है जो इससे आ रही है इससे पास हो जा रही है। लेकिन अगर हम इस एनालाइजर को रोटेट करते जाए बाय सम एंगल तो इंटेंसिटी डिक्रीज करने लगती है। कब तक डिक्रीज करेगी? जब ये 90 डिग्री हो जाएगा। एक स्लेट ऐसे है, एक स्लेट ऐसे है, और एक स्लेट जो है ऐसे है, इससे जो लाइट रेज आएगी इससे पास कैसे हो पाएगी? है ना? तो एनालाइजर का ओरिएंटेशन विथ रिस्पेक्ट टू पोलराइजर, उसको हम एंगल थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका रिलेशन जो लाइट हमें यहाँ पे मिलेंगी ना उसकी इंटेंसिटी से बताने के लिए एक लॉ दिया गया विच इज नोन एज मैलस लॉ। नाउ हाउ दिस इज रिलेटेड? सी, द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट थ्रू द एनालाइजर is directly proportional to the cosine of angle of theta between the orientation of this analyzer and polarizer. What does it means? That अगर ये एक्सिस ऑफ पोलराइजर है और ये एक्सिस ऑफ एनालाइजर है, ठीक है, अगर दोनों ये पैरेलल है तो हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है। अगर ये एनालाइजर टिल्ट होने लगा बाय सम एंगल, इंटेंसिटी घटती जाती है। सो द इंटेंसिटी which is obtained here is directly proportional to square of cosine of angle theta between this two. अगर ये एनालाइजर का ऐसे कर दिए तो ये कुछ एंगल बनाएगा इसके साथ, ये पोलराइजर है और ये है एनालाइजर, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वही एंगल थीटा है। तो I is directly proportional to cos square theta which is equal to I is equal to I naught cos square theta.
So this is what we known as Malus law. I naught is what? I naught is the maximum intensity obtained here. मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा क्या हो? जीरो हो. जीरो पे तभी तो ये और ये पैरेलल होंगे, और पैरेलल होंगे तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी ना, आई नॉट. और अगर ये 90 हो जाए, मतलब ये ऐसे पूरा हो जाए इसके कंपैरिजन में, तो क्या होगा? cos 90 जीरो इंटेंसिटी हमें नहीं मिलेगी, मीन्स इधर कोई लाइट नहीं मिलेगा. मैंने अभी पीछे कंडीशन बता दिया. सो दिस इज मैलस लॉ. अब एक बात बताओ, अगर हम जनरल इसका एवरेज करें, हम जनरल फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इसकी इंटेंसिटी यहाँ पे क्या होगी. ठीक है, तो एक बात बताओ, आई इज व्हाट? आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा. हम एवरेज निकालना चाहते हैं. आई नॉट इज कांस्टेंट, कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज करना है. हम एवरेज इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं कितना है. सो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और बाई 2 कर लेंगे. इसका एवरेज करना है. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 1/2 आई नॉट. अच्छा, 1 का एवरेज तो कुछ होगा नहीं, 1 ही रह जाएगा. कॉस 2 थीटा का एवरेज करोगे होल साइकिल पे, वो जीरो आएगा. तो हमें क्या मिलेगा? आई नॉट बाई 2. सो जो एवरेज इंटेंसिटी होती है जो हमें यहाँ पे मिलती है, वो आई नॉट बाई 2 होती है. ठीक है, सो दिस इज द मैलस लॉ. दिस इज पोलराइजर, दिस इज एनालाइजर. पोलराइजेशन का क्या मतलब है कि जो वाइब्रेशन है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में हो. ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, देखते हैं कि हाँ एक और चीज है. देखो, ये जो वाइब्रेशन हो रहा है इस पोलराइज लाइट में, ये जो वाइब्रेशन है, मतलब ये जो प्लेन है उसको प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं. मीन्स जिस डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में हमें प्लेन बना दे जो कि इस डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव से परपेंडिकुलर हो, सॉरी पैरेलल हो, तो हमें क्या मिलेगा? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन. और इसके जो परपेंडिकुलर जो हम प्लेन बनाएंगे उसको प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कहते हैं. और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन में कभी भी वाइब्रेशन नहीं होता है, ध्यान रखना, क्योंकि वो परपेंडिकुलर होता है वाइब्रेशन के. तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन हमें एक मेथड बताता है जिसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि वाइब्रेशन एक्चुअली हो किस डायरेक्शन में. अगर कहीं भी प्लेन ऑफ पोलराइजेशन आपको दिया है इस डायरेक्शन में, तो ध्यान रखना है कि हमेशा जो वाइब्रेशन हो रहा है उसके परपेंडिकुलर हो रहा है. मीन्स जो पोलराइज लाइट हमें मिला है वो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है उसका वाइब्रेशन. ठीक है ना, दिस इज मैलस लॉ. आई प्रोपोर्शन आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा. हाँ, इसका एक ग्राफ देख लेते हैं. इसका ग्राफ कैसे बनेगा? सिंपल सा है. आई इज आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा. कॉस का ग्राफ बन जाएगा यार. बट कॉस स्क्वायर थीटा तो हमें सिर्फ क्या मिलेगा? पॉजिटिव टर्म मिलेंगे, लाइक दिस. दिस इज मैक्सिमम आई नॉट. ये कहाँ पे होगा? 90 डिग्री. फिर कहाँ पे होगा? ये जीरो पे हो गया 90, 180, फिर 270, ऐसे करके चलता जाएगा. तो ये कर्व है किसका? आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा. थीटा थीटा. ठीक है, अब एक चीज देखते हैं कि हम जो पोलराइज लाइट है उसको ऑब्टेन करने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं. देयर आर वेरियस मेथड्स. सी, देयर आर वेरियस मेथड टू ऑब्टेन द पोलराइज लाइट. आइदर हम रिफ्लेक्शन के थ्रू ऑब्टेन कर सकते हैं, स्कैटरिंग के थ्रू ऑब्टेन कर सकते हैं, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू ऑब्टेन कर सकते हैं, या डबल रिफ्रैक्शन के थ्रू ऑब्टेन कर सकते हैं. तो हम वन बाय वन सबको स्टडी करेंगे. मीन्स अलग अलग मेथड्स हैं जिससे पोलराइज लाइट हम ऑब्टेन कर सकते हैं. एक तो है कि आप निकोल प्रिज्म या टुर्बुलेंट क्रिस्टल का यूज करके पोलराइज लाइट फाइंड आउट कर सकते हैं. एक तरीका यह है कि हम अलग अलग प्रोसेसेस यूज करते हैं. पहला प्रोसेस है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन. पहला है रिफ्लेक्शन के थ्रू. अब रिफ्लेक्शन के थ्रू कैसे होता है देखो. सी, मान लो हमारे पास ये ग्लास है. ठीक है, ये हमारे पास कोई ग्लास है और एक लाइट जो है इस पे इंसिडेंट कर रही है, ऐसे कुछ इस तरीके से. ये नॉर्मल हो गया, अरे सॉरी, ये नॉर्मल हो गया, लाइट यहाँ पे आई है. ये एक, अब ये बताओ, ये अनपोलराइज लाइट है. अनपोलराइज लाइट है तो इसमें जो वाइब्रेशन होगा वो दोनों होगा. ठीक है, कुछ लाइट जो है रिफ्लेक्ट करेगी और कुछ पार्शली रिफ्लेक्ट कर जाएंगे. ये एंगल है कुछ. ठीक है, अब इसमें जो रिफ्लेक्टेड लाइट में क्या होगा,
अब एक चीज समझो, ये हो गया तुम्हारा रिफ्रैक्टेड और ये हो गया तुम्हारा रिफ्लेक्टेड। अब एक चीज समझो, ये इंसिडेंट लाइट है, इसमें दोनों वाइब्रेशन है। होता क्या है कि जब ये किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम पे फॉल होते हैं तो पार्शली लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है, पार्शली ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट है इसमें भी दोनों वाइब्रेशन होंगे, कुछ कम होंगे लेकिन होंगे तो दोनों ही ना। और ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये भी पार्शियली क्या होगा, ये भी पार्शियली जो है मतलब पार्शियली इसमें दोनों कंपोनेंट होंगे। बट होता क्या है ना कि एक पर्टिकुलर एंगल पे अगर हम लाइट को इंसिडेंस कराए ना तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये कंप्लीटली पोलराइज हो जाता है। उस एंगल को हम कहते हैं ब्रिस्टर एंगल, आईपी। इसको मान लो आईपी मीन्स एज अ पर्टिकुलर एंगल at which when a light incident on a transparent medium it get completely reflected as a polarized light। मीन्स जो ये रिफ्लेक्टेड लाइट है इसमें completely जो है एक वाइब्रेशन होता है, दैट इज द डॉट वन। डॉट मतलब क्या, वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। देखो इनिशियली लाइट इंसिडेंट किया इस ट्रांसपेरेंट मीडियम पे तो पार्शली रिफ्लेक्ट हो गया, पार्शली ट्रांसमिट हो गया। इनिशियली दोनों रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड में दोनों वाइब्रेशन है, पैरेलल भी और परपेंडिकुलर भी। लेकिन होता क्या है ना कि कुछ ऐसे एंगल पे जब हम इस लाइट को इंसिडेंट कराएंगे जिसको ब्रिस्टर एंगल कहते हैं या पोलराइजर एंगल कहते हैं, उसपे क्या होता है कि ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो पोलराइज हो जाता है कंप्लीटली। मीन्स उसमें एक ही वाइब्रेशन होता है, दैट इज दी डॉट वन। ठीक है, और इस कंडीशन में क्या होता है कि ये रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड लाइट है ये परपेंडिकुलर हो जाता है एक दूसरे के। ठीक है, तो ये आईपी हुआ तो ये कितना होगा बताओ, आरपी। और ये भी आईपी। अब एक बात बताओ, ये नॉर्मल है आईपी 90 आरपी। देखो यहाँ आईपी प्लस 90 डिग्री प्लस आरपी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो आईपी इज व्हाट, प्लस आरपी इज 90 डिग्री, देन आरपी इज व्हाट 90 डिग्री माइनस आईपी। ठीक है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है मान लो म्यू, तो म्यू को कैसे लिखोगे, साइन आईपी अपॉन साइन आरपी। अब एक चीज साइन आईपी अपॉन साइन आरपी को क्या लिखोगे, ये 90 डिग्री माइनस आईपी, तो साइन आईपी अपॉन कॉस आईपी, ये क्या हो जाएगा tan आईपी। तो एक बात बताओ, ये ब्रिस्टर एंगल जो है आईपी को ही हम क्या कहते हैं, ब्रिस्टर एंगल, और इस लॉ को कहते हैं ब्रिस्टर लॉ, ब्रिस्टर एंगल। तो एक बात बताओ, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज म्यू इज इक्वल टू tan आईपी, ये किससे रिलेट हो गया, ब्रिस्टर एंगल से। मीन्स किसी मटेरियल का अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है उसका अगर हम tan इनवर्स कर दें तो हमें ब्रिस्टर एंगल पता चल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर एंगल पे किसी भी लाइट को इंसिडेंट करोगे तो वो जब रिफ्लेक्ट होगा वो कंप्लीटली पोलराइज्ड होगा। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इसमें क्यों डॉट आ रहा है, क्यों नहीं ये पैरेलल वाले कंपोनेंट आ रहे हैं। तो एक बात बताओ, जो रिफ्रैक्टेड लाइट में जो पैरेलल वाले कंपोनेंट होंगे या जो इसमें जो पैरेलल वाले कंपोनेंट होंगे वो ध्यान देना वो इस रिफ्लेक्टेड लाइट की डायरेक्शन के पैरेलल है। मतलब क्या हुआ, ये जो कंपोनेंट है और ये जो कंपोनेंट है दोनों पैरेलल है। यहाँ पे जो कंपोनेंट है ये वाला एरो वाला ये इस डायरेक्शन के पैरेलल है, और जब वो चीज उसके डायरेक्शन के पैरेलल होगी और ये दोनों 90 डिग्री पे है। एक बात बताओ, ये लाइट ऐसे और ये लाइट ऐसे है, एक लाइट ऐसे है और एक लाइट ऐसे है और ये दोनों 90 पे है। तो इस पे कोई भी कंपोनेंट मान लो एक ए वेक्टर है और ये 90 और ये बी वेक्टर है, तो क्या ए का कुछ कंपोनेंट इसमें मिलेगा हमें बी पे, 90 डिग्री है तो ए cos 90 करोगे तो जीरो मिलेगा। मतलब क्या होता है कि जो रिफ्रैक्टेड लाइट है इसमें जो एरो वाले कंपोनेंट होते हैं ये इस रिफ्लेक्टेड लाइट के डायरेक्शन के पैरेलल होते हैं, जिसकी वजह से ये इस डायरेक्शन में कोई भी एनर्जी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं इस कंडीशन की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है सिर्फ हमें इसमें डॉट देखने को मिलता है, मीन्स द वाइब्रेशन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और ये कंप्लीटली पोलराइज लाइट हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया, पोलराइजेशन क्या होता है जिसमें डायरेक्शन वाइब्रेशन जो है एक डायरेक्शन में हो, पोलराइजर के थ्रू हम चीज फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मैलस लॉ देखा कि इंटेंसिटी एनालाइजर से के बाद जो लाइट निकलती है उसकी इंटेंसिटी क्या होती है। इसमें देख लिए कि रिफ्लेक्शन के थ्रू पोलराइजेशन होता है, कैसे रिफ्लेक्ट होगा कुछ पार्शली ट्रांसमिट होगा।
एक पर्टिकुलर एंगल पे क्या होगा कि वो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है कम्प्लीटली पोलराइज हो जाती है, उस एंगल को हम कहते हैं ब्रिस्टर एंगल, और ये हमारा ब्रिस्टर लॉ हो गया, μ = tan IP. So that's all about today's lecture. Thank you.